उसकी 18 आयत। यूहन्ना दे चेले अते फरीसी व्रत रखदे सन। यूहन्ना दे चेले अते फरीसी जिहड़े सीगे ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? यूहन्ना ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ यूहन्ना ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ, यूहन्ना ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਭਲਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਹਨ? ਬਰਾਤੀਏ ਭੁੱਖੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ? ਲਾੜਾ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਦਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦਾ, ਹਨਾ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਕਰਿਓ? ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਤ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫॉर एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਮੁੜੂਗੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ? ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਦ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਰਤ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਜਦ ਤੱਕ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, यूहन्ना ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਫਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ,
प्रभु तेरे चेले वर्त क्यों नहीं रखते? यीशु कहना मैं इन्हां दे नाल आ, इन्हां नूं रखण दी लोड़ नहीं। जिस दिन लाड़ा यानी कि मैं इन्हां तो अलग किया जावांगा, उस दिन ये रोजा रखणगे, वर्त उस दिन रखणगे। जद यीशु मसीह ने जान दी तद भी वो प्रार्थना विच सी, रोजे विच नहीं, हजे अलग नहीं होया यीशु। जद तक लाड़ा बरातियां दे नाल आ, उन्हां नूं रोजा रखण दी लोड़ नहीं। हजे तक यीशु दा शरीर उत्थे है, उन्हां दे कोल है, उन्हां नूं पता यीशु उत्थे है। तीसरे दिन यीशु मुर्दियां च जी उठा, फिर कोल है, हजे उन्होंने रोजा नहीं रखे। आप सोचते होंगे शायद यीशु ने जो जान दी है, कई दिमाग चलते भी फिर उन्होंने रो रो के जब वर्त रखा होना, खादा नहीं होना। नहीं, यीशु तो उन्होंने कोल आया, कोल आके कहता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਛੱਡ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ स्वर्ग उठाया गया, जिंदा। जो जिंदा स्वर्ग उठाया गया, उदों 500 तो वध लोगों की भीड़ जिहड़ी उत्थे खड़ी है, नाल रसूल नाल चेले खड़े हैं, वो देख रहे भी यीशु अज साडे तो पक्का चला गया, भाई हुण तो स्वर्ग ही चला गया है। जो चला गया हुण आवाज सुनने को नहीं मिल रही, देख नहीं रहा यीशु। अगे तो पता सी ना कब्र च, हुण देख नहीं रहा। 40 दिन फिर नाल रहा, देख नहीं रहा। हुण फिर उन्होंने रोजा रखा, फिर रोजे रखे और रोजे रख के बैठे आ पेंतीकोस्त के त्योहार लिए। 10 दिन बाद पेंतीकोस्त का त्योहार है और उन्होंने लगातार रोजे रखे, लगातार प्रार्थना विच रहे। और फिर वो 12 नहीं रहे, वो 12 120 जणियां दी जमात बन गई। फिर पवित्र आत्मा का करार आया। जो पवित्र आत्मा उन्हां उत्ते उतरिया, वो दान वरदान अलग अलग बोलियां ते शक्ति नाल परिपूर्ण हो गए। कमजोर सी, की सीगे कमजोर। मूसा ऊपर गया, कुछ नहीं खादा, कुछ नहीं पीता। कमजोर होना चाहिए कि बलवान होना चाहिए? नेचुरली कमजोर होना चाहिए, पर वो तकड़ा होके आया, तकड़ा होके आया। यहोशुआ थल्ले खड़ा है इंतजार च, वो भी 40 दिन 40 रात हिलिया जी, खाता उन्हें भी कुछ। कमजोर होना चाहिए कि तकड़ा? पर वो दोनों ही तकड़े। 10 दिन लगातार प्रार्थना विच रहे, दिन रात। कमजोर होने चाहिए कि तगड़े? जो पवित्र आत्मा की सामर्थ आई तो कलाम च लिखा उन्होंने शक्ति पाई। और कलाम च लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुसी की पाओगे? शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे। उस शक्ति नाल तुसी अगे तक पहुंचोगे, गवाह ठहरोगे। उन्होंने जब शक्ति पाई, प्रभु का वचन दसदा है उस दिन तो अज दे दिन तक। मैंने ये गल दसो, प्रभु ने की कहा? मेरा आत्मा कुछ टाइम लिए तुहाडे कोल आएगा, का हमेशा नहीं? हाँ या ना? चलो मत्ती 28 20 आयत पढ़ लो। मत्ती 28 20 आयत। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। संसार दे अंत तक हर वेले। फोन ऑफ करो। मैं संसार दे, फिर पढ़ दो आयत है,
सिखाओ कि उन्हां सारियां गल्लां दी पालना करन उन्हां सारियां गल्लां दी परमेश्वर दे वचन दी पालना करन जेड़ा मैं तुहानू दिता हुक्म जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिता जिन्हां है दा हुक्म दिंदा हां अते वेखो मैं संसार दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल हां संसार दे अंत तक लाड़ा ते संसार दे अंत तक साडे नाल है हुण दसो रोजा रखना चाहिए कि नहीं लाड़ा रब परमेश्वर सच्चा वाहिद खुदा ओदा जुग दे अंत तक साडे नाल फिर रोजा रखने की लोड़ हैगी है कलाम च लिखा है जद तक लाड़ा साडे नाल आ सानू भुखे रहन दी लोड़ नहीं जदों साडे तो अलग किया जाएगा तद वो वर्त रखणगे ये चेलियां दे विषय विच यसू ने कहा सी उन्होंने 10 दिन कुछ नहीं करदा प्रार्थना करते रहे फिर पवित्र आत्मा भेजा ते पवित्र आत्मा दे जुग दे अंत तक साडे नाल है प्रभु साडे हुण दसो भुखे रहन दी लोड़ हैगी है कि नहीं चलो मैं सीधा सीधा तुहानू बता दिंदा रोजा रखण दी लोड़ तुहानू तां आ जे तुसीं परमेश्वर दे विरोध विच चलदे हो रोजा रखण दी लोड़ तुहानू तां आ जे तुसीं परमेश्वर दे वचन नू तोड़दे हो इत्थों तक नौबत ना ही आउण दो इत्थों तक नौबत ना ही आउण दो ओदे कलाम नू तोड़ो ना ओदे हुक्म नू तोड़ो ना परमेश्वर नू निराश ना करो ओदे आत्मा नू निराश ना करो तुहानू रोजा रखण दी लोड़ नहीं सिर्फ ओदे हुक्म ते चलण दी लोड़ है तुहानू भुखे रह रह के पश्चाताप करन दी लोड़ नहीं सिर्फ और सिर्फ ओदे कलाम ते चलण दी लोड़ है ओनू मनण दी जरूरत है हालेलुया एक आयत पढ़ दो यूहन्ना दी इंजील 5:24 जल्दी 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 मैं तुहानू सच सच दसदा हां ओ मेरा वचन सुनदा है जेड़ा मेरे वचन नू सुनदा है अते उन्हां उत्ते विश्वास करदा जेड़ा है उन्हां वचनां ते विश्वास करदा है ओ जिसने मैनू भेजा है जिसने मैनू भेजा है सदीपक जीवन उसदा है सदीपक जीवन उस दा है मतलब उन्हें पा लिया उस व्यक्ति ने वो हमेशा दी जीवन नू पा लिया इटरनल लाइफ नू पा लिया जेड़ा वचन ते चलदा है पश्चाताप की जरूरत किनू है जिहदे कोल जेड़ा अज तक खुदा तो दूर है आत्मा तो पवित्र आत्मा तो दूर है ओदी संगति तो दूर है वो आंदा है पश्चाताप करदा है कि मैनू जरूरत है परमेश्वर मैनू तेरी आत्मा की जरूरत मैनू तेरे कलाम की जरूरत मैनू तौबा की दूर पश्चाताप की जरूरत मैनू पापा की माफी की जरूरत है अगर तुसी पश्चाताप कर चुके हो बपतिस्मा ले चुके हो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो तुहानू सिर्फ ओदे कलाम नू ओदे वचन नू ओदी बाणी नू अपने जीवन में अपनाउण की जरूरत है रोजे रखण दी नहीं हालेलुया 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 किन्ने नू समझ आ रही है जे तां कीता गुनाह फिर तो पूछण दी लोड़ नहीं सीधा हो जा रब नाल क्योंकि माफ वो ही कर सकता है या ओदा दास कर सकता है पर दास दे मोरे भी तेरी जीवन तेरी लाइफ ठीक होनी चाहिए है उन्हें पता लगे कि लाइफ ठीक है फिर वो कहेगा तेरे पाप माफ हालेलुया हालेलुया ते खुदा हैगा साडे नाल जुग दे अंत तक हुण रोजा केड़ा रखना तुसीं ओदा नाम दस दिओ केड़ा रोजा रखोगे थोड़े विच एक जना हाथ खड़ा करके दस दो भी खुदा जग दे अंत तक साडे नाल नहीं जुग दे अंत तक साडे नाल नहीं एक बंदा दस रब नाल है कल जो मेरा एक्सीडेंट होया तद भी रब मेरे नाल सी मेरी गड्डी टुटी है सुबह 10:30 के करीब
मेरी गड्डी नूं जाके देखो, तुहानूं लगना ही है, लगना नहीं बिल्कुल भी ये गड्डी टुटी है। सवेरे 10:30 बजे तो लैके शाम के 4 4:30 का करीब टाइम लग गया, गड्डी बन गई। गड्डी बन गई, इसलिए गड्डी ते नुकसान है, गड्डी बन गई। मैनू नहीं कुछ होया, बहुत जोरदार झटका लगा मैनू, मेरा सिर बिल्कुल इदा हैंडल च ही वजना सीगा। सीट बेल्ट लगी सी मैनू, मैं बिल्कुल इदा सेफ हो गया। सीट बेल्ट जी होंगी ना लॉक हो जाती है, जो एकदम झटका लगता है, वो आराम ना खिंचिए, जितनी मर्जी खिंच लो, जो जोर ना खिंचोगे लॉक लग जाती है। तो लॉक लग गई एकदम, मैं अगे नहीं गया, बचाव हो गया। गड्डी कल सारी खोली हुई सी पिछले, हुण देख के नहीं तुहानूं लगना गड्डी टुटी, क्योंकि गड्डी बन गई। मेरे को जो इन्वेस्टमेंट सी, जो पैसा सी, सारा खर्च हो गया। मैं सोचे भी की करूँगा, आने वाली मीटिंग मेरी मीटिंग है 26 तारीख की, क्योंकि मैंने सब तो ज़्यादा टेंशन होती होंगी है। मैं उधर छोटा थोड़ा थोड़ा करके बचा के रख लिया। जो तो सारे पैसे लग गए थे, मेरा मन थोड़ा जहा होने लग गया। मैं क्या भी कलीसिया ते बोझ मैं पाउना नहीं, मैं उन्होंने कह दिना है कोई करे ते भावे ना करे। दुआ की थी प्रभु हम गए नहीं, हम इंतजाम भी नहीं कर, वो मेरे को कुछ नहीं है। फिर थैंक्स किया कि प्रभु तू मैंने बचाया। इसलिए समझो, तुहानू रब दे नाल वफादार होके चलने की लोड़ है, रोजे रख रख के नहीं। कोई बाप नहीं चाहता उसका बच्चा भुखा रहे, परमेश्वर नहीं चाहता तुसी तरले करो, मिन्नतां करो, भुखे रहो, बल्कि कलाम ते कहंदा है रोज अपनी मुट्ठी नूं खोलदा ते सब जीआं नूं। हालेलुया। तो अपनी मुट्ठी तेरे वास्ते भी खोलदा है। समझ आ रही? चाहे कोई झुग्गी च रहिंदा है, फुटपाथ ते रहिंदा है, चाहे कोई महला च रहिंदा है, परमेश्वर किसी नूं भी भुखा सौण नहीं देता। तू भुखा उठ सकता है, लेकिन भुखा सौण तेरे उठन तो पहला तेरे इंतजाम करने वाला खुदा, तू उठिया भुखाया पर रहेगा नहीं। तेरे उठन तो पहला तेरे इंतजाम करने वाला खुदा। इसलिए सौण तो पहला अपनी गलतियां मन के सोनी। जो खुदा जो तेन संभालता है वो नहीं चाहता तो ऐसे हालात प्रभु का वचन कहता है, कहता तेन खनिज पदार्थां नाल रजावेगा, खनिज पदार्थां नाल तूने तेल दे नाल तृप्त होवेगा। क्यों जरूरत पड़ेगी तेन फास्टिंग की? कारण जान की लोड़ है फास्टिंग करने की? रब चाहता तू फास्ट कर, फास्टिंग कर। बाइबल में एक कारण दस दो कि रब चाहता है तू फास्टिंग कर, रब चाहता है तू भुखा रह। रब चाहता है नहीं, नहीं वो चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है। लेकिन परमेश्वर तो नहीं ना चाहता भी तू हाड़े कट कट के आ, दुख चल चल के मेरे को। वो रास्ता थोड़ा इदा का है, सानू लगता है, पर ये प्रभु नहीं चाहता कि इस तरह हो। जिस राह तू जाना लिखा तेरी अगुवाई करेगा ना, मतलब ये है कि वो तेरे नाल रह के तेनू दसेगा तू चलना मिलेगा। समझा? जिस राह तू जाना तेरी अगुवाई करेगा, कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लई, संपूर्ण मन दे नाल यहोवा दे उत्ते भरोसा रखी। जिस राह तू जाना तेरी की करेगा, अगुवाई करेगा। क्यों? फास्टिंग करने की अगुवाई करेगा। फास्टिंग करनी का दिया जे करनी है तो कपटियां वाला मुंह ना बनाओ। तो याद रखियो फास्टिंग करने के वास्ते लगे हैं। जे गुनाह किया है तो फिर सारा दिन प्रभु के सामने एक गल रख दो, प्रभु अज ही मेरे उत्तों
ये गुनाह साफ कर दे। हालेलुया। आज ही मेरे जीवन चो खुदा ये बंधन तोड़ दे। मुंह कपटियां वाला नहीं, पश्चाताप वाला होवे। हालेलुया। कपटियां वाला नहीं, पश्चाताप वाला, माफी वाला, माफी लेने। एक व्यक्ति उन्हें किसी का कर्जा देना है, की देना है? कर्जा देना। जिहदा कर्जा देना है, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ मैं तेरा कर्ज नहीं दे सकता, मैं इन्ने लायक नहीं हैगा, मेरे च जोर नहीं है, ताकत नहीं है, मैं इन्ना पैसा कमा के तेनू नहीं दे सकता। बाइबल च लिखिਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ कर्ज ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। अपना कर्जा माफ करवा के आया, अगले ने जाके संगियों फड़ लिया, गले तो फड़ लिया, गले तो फड़ के कहंदा ओए कट मेरे पैसे जिन्ने मैं तेरे तो लेने हैं। उन्हें भी हाथ जोड़े, हाड़े कटे, कहंदा मैं तेरे पैसे नहीं दे सकता, मेरे को इन्ने पैसे है नहीं, कमाई मेरी नहीं है नहीं, मेरा गुजारा मुश्किल ना होता है। कहंदा नहीं, उन्होंने संगियों फड़िया है। उस बंदे ने जाके उसे बंदे को जाके कंप्लेंट कर दी, क्योंकि वो शाहूकार सीगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਿਓਂ ਫੜਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। इसलिए जब तू व्रत रखना है, किसी लिए भी नहीं, एक लिए भी नहीं। कई साइया भाइयों को पता ही नहीं, वो फास्टिंग इसलिए करते हो तो नुकसान हो जाए। फास्टिंग विचों उठ के किसी को शराब देना, फास्टिंग विचों उठ के किसी लिए मौत मंगनी। खुदा दे कोलों आया है, बरकत देने लिए आया है। तुहानू पता है मूसा नूं जरूरत तां ही पई, 40 दिन ऊपर रह के आया, थल्ले आके 10 पग्गे फटियां तोड़ दिया, उन्होंने गुस्सा किया, लोग मर गए, फिर वापस जाना पिया। तेनू इस वास्ते नहीं सी भेजिया, इस वास्ते नहीं सी भेजिया जिन्होंने जाके श्राप दे, उन्होंने ऐ कर लो, वापस जाना पिया। फिर रब ने भी सीधा कहा, पहला तो लिख के दित्तियां सी मैं, और तू आप लिखनिया ने, आप लिखनिया ने। दूसरी बारी उन्हें 40 दिन इसलिए लगे, पहले ही बार परमेश्वर ने अगे योजना, परमेश्वर की प्लानिंग। दूसरी बार उन्हें आप लगे क्योंकि नीलम दी पत्थर नूं घड़ के सेम उदा दी जिद्दां दी खुदा ने घड़ी है, ते लिखाई भी करनी सेम उदा दी जिद्दां दी खुदा ने। फिर तां चल गए। दूसरी बारी जरूरत नहीं सी उन्हें जान दी, वो थल्ले बैठ के भी लिख सकता सी, उन्हें पता ही सी ना, उन्हें लिख लैके तो ही आया ना खुदा दे कोलों। दूसरी बार फिर गया, फास्टिंग च उठना, शराब नहीं देना, फास्टिंग च उठना। फास्टिंग किवें करनी है? अपने पाप माफ करवाउण दे लई, अपनी सजा माफ करवाउण दे लई, या अपने आप नूं परमेश्वर दे विच वधाउण दे लई, रूह विच वधाउण लई तुसीं अपनी मर्जी नाल करदे हो फास्टिंग। सही मायने विच जिहड़े फास्टिंग कर रहे ने वो अपनी ही मर्जी नाल कर रहे ने, अपने फायदे लई, अपनी बढ़ोतरी लई कर रहे ने, कोई बुरी गल नहीं। पर जब फास्टिंग तो उठिया है, अपने पाप तू माफ करवा के उठिया है, ते किसी दे पाप माफ नहीं कर रहा, तेरी फास्टिंग जीरो। रब दे अगे तू हाड़े कटे ने, अपने पाप माफ करवाए ने, अगले नूं जाके तू गलियों फड़दा है, तेरी फास्टिंग जीरो। दुगना बदला देना पड़ेगा। कितने समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? परमेश्वर हर वक्त साडे, हर वेले साडे। कोई ऐदा दी घबराउण वाली गल नहीं है, फास्टिंग ही करो, फास्टिंग। मैं कहना है कि खुदा दे जिंदा कलाम ते चलो, खुदा दे जिंदा कलाम ते चलो, इस कलाम को अपनी लाइफ से पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ने
ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा ने क्या सी, जमीन आसमान टल जान ते भावें टल जान, मेरा क्या होया शब्द कदी भी टलदा नहीं, ओदा शब्द कदी भी टल नहीं टल सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਤਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਖਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ। हालेलुया। खुदा बाप इस कलाम पे पढ़े सुने जाके बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। और इसी तरह फिर प्रभु की महिमा भी चलांगे दे नाल ही प्रभु की सेवा वास्ते ऑफरिंग करना चाहते दे सकते हैं। और खुदा बाप तो अनुसार बरकत दे, खुदा बाप तो अनुसार आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। और समय है जिन्हिया ने बपतिस्मा लिया, जिन्हिया ने भी बपतिस्मा लिया है, पाक अशैरबानी पाक मास दी रस्म विच जिहड़े शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। प्रभु तुहानू सारिआं नूं बरकत दे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुहानू सारिआं नूं बरकत दे। जिन्हां ने बपतिस्मा लिया है वो अगे आ जान, जिन्हां ने बपतिस्मा लेना है या नहीं लिया वो पिछे बैठन, प्रार्थना करन। असीं सब दे सब परमेश्वर दी महिमा विच प्रभु दा धन्नवाद करते हुए पाक शायरबानी दी रस्म जावां। हालेलुया। खुदा तुहानू सारिआं नूं आमीन आमीन।